Hello, Assalamu alaikum. I hope everyone can hear me clearly. Walaikum Assalam. Okay. This is Farah from OCLP, Office of Corporate Linkages and Placements at University of Management and Technology. Under the vision of President UMT, Mr. Ibrahim Hassan Murad has launched a high-impact iconic learning and development focused virtual career week 2021 on the theme of chasing the dream career 2030 to prepare the students and facilitate them to encourage as a marketable graduates for the future world of work. This career week is one of its kind engaging platforms that has brought together the biggest, smartest, and brightest gurus, speakers, panelists, and success icons from all the walks of life. There are myriad of career related activities planned in this career week, including insightful workshops, induction sessions, recruitment drives, education expos, engaging panel discussions, and multiple grooming and orientation sessions for the future leaders. In this career week, students will be oriented about the expectations and emerging trends and challenges of the industry. Furthermore, this Career Week has also provided a platform to the corporate sector to introduce their companies to a diverse crowd of students and to get a pipeline of talent as your future workforce, as we have 25,000 plus students and 20,000 plus alumni. And they are not only their potential employees for the future, but their current consumers and future influencers as well. Talking specifically about today's theme, so today's theme is Hustle Hut. In this theme, we are conducting a CV resume writing workshop that has been specifically planned for the students of SBE, SPA, and SCA schools. The purpose of this session is to help students make their CVs more marketable. Prior initiating the session, I would like to give a brief intro about the speaker. We have Mr. Ali Gohar with us. Mr. Ali Gohar heads the People Department of Empiric AL, previously known as Angro Digital. He has about 14 years of industry experience, and has previously worked in Systems Limited as Assistant Vice President. He has also worked in NetSol, Cure MD, Pakistan International Airlines, Samba Bank, and others. During this time, he on behalf of his organization has hired thousands of fresh graduates from leading institutions and top-notch experienced professionals from in and outside Pakistan. His favorite areas are organizational development, talent acquisition, rewards, employer branding, and assisting young talent to reach their true potential. Now, I would like to give a brief intro about the company to whom he is representing today. Empiric AI is an advanced analytics software company that aims at industrial process engineers, health and safety professionals. Their software solves business challenges for improving operational performance, reducing costs, improving productivity and reliability to minimize health and safety risks at work. Their team has developed innovative applications that empower their clients to leverage data for actionable insights and immediate outcomes. Now, I would like Mr. Ali Gohar to formally start the session. Question answer session will be at the end. All right, thank you so much, Farah, for the wonderful introduction. So I am assuming I'm mostly talking to the people from the business management and commerce students. Yeah. So great. Mostly, and most of them are from the final semesters, I believe. No, they are MEX graduates. Okay, one moment. Gee, my apologies. All right. First of all, thank you everyone for joining. I can see there we have about around 114 participants. So it's good that we all are very eager to think about our careers और exactly हमने कैसे plan करा and all that. So जो topic है हमारा it's more like of the
how do you maintain your resume. That's only one spectrum of it. When we talk about branding you as a candidate, it has a larger perspective, बिकॉज हम सब ये बोलते हैं और मानते हैं कि जॉब्स मिलना मुश्किल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना मुश्किल होता है, हम सबका ये ख्याल होता है. लेकिन और आप ये बात आज से नहीं सुन रहे होंगे, हमेशा से सुन रहे होंगे कि एम्प्लॉयर्स कह रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी पोजीशंस खाली पड़ रही हैं और हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं होते. तो वो गैप, बिकॉज ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं उस वक्त में भी रहा हूँ जब मैं बिल्कुल आपकी तरह सोच रहा था कि मैंने उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि मैंने करना क्या है, मार्केटिंग पढ़नी है, एचआर पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है. और एक सिचुएशन वो थी कि जब मैंने जॉब मार्केट को हिट करना था, तो आई हैव बीन थ्रू दिस. जिस जिस जो आपकी फीलिंग्स होंगी, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्योंकि हम जरा बिजी होते हैं और नॉर्मली हम चीजों को जल्दी करना चाहते हैं, तो हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आई कैन सी मुदस्सिर हियर, आई डोंट नो मुदस्सिर, जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल, मुदस्सिर ने अपना रेज्यूमे बनाना है, तो उन्होंने राफे से कहा कि मुझे अपने रेज्यूमे की कॉपी देना कि तुमने क्या रेज्यूमे बनाया. और राफे जो है उसको पता है कि अपनी क्लास के, लेट्स अज्यूम, टॉपर है, तो उनका रेज्यूमे राफे का अच्छा होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी, मैं राफे से फॉर्मेट लेता हूँ. यहाँ तक तो ठीक है. लेकिन होता यह है कि कई दफा आप उस फॉर्मेट में सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं, अपना जीपीए चेंज करते हैं, अपनी बैचलर्स डिग्री अगर डिफरेंट डिसिप्लिन में है तो वो चेंज करते हैं, और प्रोजेक्ट्स को हल्का फुल्का ट्वीक करते हैं, और वही आप आगे भेज देते हैं. तो उससे होता ये है कि जब भी आप सीवी इज लाइक योर ड्रेस ना, जो आपको प्रेजेंट कर रहा है. सो अगर आप कपड़े ऐसे पहनते हो जिसमें टोपी किसी और की होती है, और शर्ट किसी और के साइज की फिट है, और पतलून किसी और के साइज की है, तो ऑब्वियसली आपकी अपीयरेंस बहुत मजे की नहीं आएगी. तो चीजें आपको फिट होंगी, और आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो वो फिर आपको सही तरह से प्रेजेंट कर रही होंगी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रेज्यूमे आपका होना चाहिए, उस पर जो ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए वो आपका होना चाहिए. वो कॉपी पेस्ट होगा तो वो आपको भी भूल जाएगा, और होगा ये कि 5 साल के बाद जब आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा बहुत सारा, और फिर भी आप कहीं अपना रेज्यूमे डाल रहे होगे, तो उसके ऊपर फिर भी लिखा होगा टू अटेन अ मीनिंगफुल पोजीशन एट अ प्रेस्टिजियस स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के जो फिक्रे होते हैं जो हर एक को पता होते हैं कि आप हमने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं. सो वो हमारा अपना होना चाहिए, दैट ऑल स्टफ शुड बी आवर ओन. सो हम थोड़ा सा करते ये हैं कि हम फॉर द फर्स्ट लेट्स से 30 मिनट्स, इट विल बी अ मोनोलॉग, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो हम सब मिलके करेंगे, और जितने भी लोग जूम पे अवेलेबल हैं वो सब लोग हम मिलके करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स ऑफ कोर्स हो ही सकते हैं. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. आई होप फॉर आई हैव द राइट्स, काइंडली ग्रांट मी द राइट्स टू शेयर माय स्क्रीन प्लीज. Yeah, sure. थैंक्स. सर काइंडली आप अपना माइक ऑन कर लें. Yes. So probably I was not allowed to unmute as a participant. Anyways, I think you can hear me now.
सो आपका जो रेज्यूमे होता है उसके बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, बाय एंड लार्ज ये 5 पोर्शंस होते हैं जिसमें आपके रेज्यूमे को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक उसका हेडर पोर्शन होता है ऑफ कोर्स, इसमें आपका नाम होता है, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्टिव समरी यानी कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसमें समरी हो। शुरू में समरी भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इफ यू आस्क मी आई वुड प्रेफर समरी ओवर ऑब्जेक्टिव, और इनकी हम डिटेल्स पे बात करते हैं। फिर आपकी कुछ एजुकेशन और ट्रेनिंग्स की बात होती है जो दो मुख्तलिफ पोर्शंस भी हो सकते हैं और एक के अंदर भी हो सकते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो ज्यादातर आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर, और एक्सपीरियंस होगा, और इसी के अंदर इसी ब्रैकेट में हम आपकी मेजर अचीवमेंट्स भी डाल देते हैं। सो वी कैन विल हैव अ लुक एट डिफरेंट रेज्यूमेस, और उसके अंदर फिर हम उसको देखेंगे। देन अगेन स्किल्स, स्किल्स का मतलब ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप एक लॉयर हो और आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आती है, तो जो बाकी चीजें होती हैं जो आप एडिशनली कर सकते हैं वो आपकी स्किल्स होती हैं, जो डायरेक्टली आपकी जॉब रिलेटेड भी हो सकती हैं और एडिशनल भी हो सकती हैं। अगेन हम इसके अंदर इसको डिटेल से देख लेंगे। ओके, ऑलराइट। सो जब भी हमने सीवी बनाना है तो इट शुड नॉट बी वन साइज फिट्स ऑल, इट शुड नॉट बी। होता ही है कि जब हम फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो हम अपना एक सीवी निकालते हैं, अगर हमने उसको हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करना है हार्ड कॉपीज, हम उसकी कुछ 40 कॉपीज निकालते हैं और हम हर जगह वही कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या हमने एक सीवी बना के रखी होती है और जब भी कहीं हम किसी जॉब को देखते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, तो हम वही सीवी उठाकर फॉरवर्ड कर देते हैं। सो उससे नुकसान ये होता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिल्कुल एक तरह की नहीं होती। आपको उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना चाहिए, वो भी हम आगे चल के देख लेते हैं कि कस्टमाइज से मतलब क्या, और एग्जैक्टली आपको क्या प्रोजेक्ट करना है अपने रिज्यूमे, अपने अपने आप को क्या बताना है। कौन सी चीजें आप ना बताएं तो बेहतर है। आपने एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप अपने आप को एक एचआर के अंदर, फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बंदा अपने आप को समझते हो और वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स वो नहीं थे। आप जब 5th सेमेस्टर में कुछ कर रहे थे तो उस तो आपको ये भी मालूम नहीं था कि आपने मेजर्स किस में करना है, तो आपने अपना प्रोजेक्ट कोई और चूज कर लिया। तो ये भी आपके रेज्यूमे भी हो सकता है। तो फिर कौन सी चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप उनको मनोवन वहीं पर डाल दोगे तो आप करना कुछ और चाह रहे होगे लेकिन आपका सीवी कुछ और कह रहा होगा आपके बारे में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम आगे चल के जरा डिटेल में देखते हैं। सो जब एक रेज्यूमे, बिकॉज रेज्यूमे एक ऐसी चीज है जो आपने भेजना और किसी और ने पढ़ना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस शूज उन शूज के अंदर जाके देखो कि जो वो उसको पढ़ रहा है उस वो एग्जैक्टली क्या ढूंढेगा उसके अंदर से, और उसको क्या चीजें उसके अंदर से चाहिए। सो उसके शूज में जाकर आपके लिए देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली सिंस आई इन माय 14 इयर्स, उसमें से आधा एक्सपीरियंस मेरा टैलेंट एक्विजिशन का है और उसके अंदर से बहुत सारा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल टैलेंट एक्विजिशन का भी है। सो प्रॉब्ली आपको मेरे शूज में आना है या मेरे जैसे किसी और आदमी के शूज में आना है जो कि सीरीज को देख रहा है। तो वो एग्जैक्टली क्या देख रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि जो डिटेल उसको चाहिए वो उसके अंदर अवेलेबल है भी या नहीं है। कई दफा क्या होता है, हमारी कोई डिटेल हमें लगता है कि बहुत शानदार नहीं है तो हम उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एमबीए किया, आपने मार्केटिंग में किया और अब आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि यार मेरा जो बैचलर्स था वो एक सादा बीए था, जो कि बुरी बात नहीं है, और लेकिन हम उसको बुरी बात समझ रहे हो सकते हैं कि यार नहीं वो तो एक बीए था, बीबीए नहीं था, तो या बीएससी मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स था, तो वो रेलेवेंट नहीं है। तो क्या करते हैं, हम उस चीज को सीवी से उठा देते हैं और हम स्मार्ट समझ रहे होते हैं अपने आप को, हरकत करते हैं कि हमने देखा प्रेजेंट वो चीज की जो हमें चाहिए थी। लेकिन हो सकता है कि आपका जो रिक्रूटर था वो एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां पे उसने ये सारी चीजें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या मैनुअली एक स्प्रेडशीट में डालनी थी और वो उसने आगे भेज दी थी शॉर्टलिस्टिंग के लिए। जब उसके पास वो चीजें नहीं होंगी तो वो क्या करेगा, वो आपका सीवी स्किप कर देगा। या तो उसके पास इतना टाइम होगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपको फोन उठाए पूछे कि आपने अपना सीजीपीए नहीं लिखा, मुझे आपका सीजीपीए चाहिए। तो चांसेस हैं कि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, चांसेस ज्यादातर यही हैं। तो वो आपका सीवी साइड पे रखेगा और नेक्स्ट सीवी पे चला जाएगा। तो आपका सीवी जो जो मैं समझ रहा था कि मैं बहुत स्मार्ट हूं और मैंने वो चीज मिस कर दी है, वो असल में मेरे सीवी को आगे जाने से रोक देगी। तो इंस्टीट्यूट का नाम कई दफा हमें बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में जिसमें से बहुत से इंस्टीट्यूट्स पे हो सकता है एक कैंडिडेट को बहुत फख्र ना हो कि यार नहीं मेरा उस वक्त एडमिशन मुझे जगह मिल गया लेकिन चीज बहुत मजे की नहीं थी। तो कई दफा इंस्टीट्यूट का नाम आप सिर्फ लिख देते हैं, बैचलर्स मास्टर्स, आप उस पर नहीं लिखते।
फिर आप कई दफा, एंड व्हेन आई से आप, इसका मतलब है सेकंड पर्सन, आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस, इट्स द सेकंड पर्सन। फिर कई दफा ऐसा होता है कि जो ड्यूरेशन है काम की, अगर आपकी पहली 2-3 जॉब्स थी वो आपने बहुत जल्दी जल्दी छोड़ी, तो आप लिखते हैं 1 year एट दिस, 6 months एट दिस। आप टाइम नहीं लिखते। अगेन हम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि हम ड्यूरेशन छुपा लेंगे, कि हम मार्च से अक्टूबर तक गए थे, फिर दिसंबर से अगले मार्च तक गए थे, तो वो जो 2 महीने हमने बीच में गैप था वो हम उसको इस तरह कवर कर लेंगे। ये सारी चीजें अगर कोई नालायक रिक्रूटर है तो आप कवर कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर कहीं काम की जगह पे आप भेज रहे हो जहां पे चांसेस हैं कि काम के लोग ही बैठे होंगे, तो जरा मुश्किल हो जाएगा छुपाना, और उल्टा आपका रेज्यूमे आगे नहीं जाएगा। आप एग्जैक्टली ये बात मैंने जैसे पहले कही थी, एक्सप्लेन योर डायरेक्शन, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर एबीसी चीज करना चाह रहे हो और आपके प्रोजेक्ट्स उससे डिफरेंट हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स का वो पार्ट जो कि आपकी रेलेवेंट जॉब, जो आपकी जॉब से रेलेवेंट है, उसको आप बता सकते हो। आपने अपने बैचलर्स के अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं किया, और जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में लिखो। और अगर आप ज्यादा फोकस उन प्रोजेक्ट्स पे कर दोगे जहां पे आप सीवी भेज रहे हो उससे रेलेवेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके सीवी को मिसलीड कर देगा। तो बेहतर है कि उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात ज्यादा करो जो आपने जो उससे रेलेवेंट है। नाउ द क्वेश्चन, let me ask this question from somebody here just to see कि हम लोग सो तो नहीं गए। I can see Fahad Alam here. Fahad, can you tell me, just a question, this is just a thought, इसमें कोई yes no या right wrong नहीं है। अगर आपके resumes, अगर आपके प्रोजेक्ट्स सारे के सारे entirely वो नहीं हैं जिस जॉब के लिए या जिस काम के लिए अपना रेज्यूमे भेज रहे हो, तो क्या करना चाहिए फहद? फहद, आर यू हियर? All participants can unmute themselves. जी, kindly please, yeah, okay. So probably if Farah can assign me rights to unmute myself, that would help. Maybe अगर आप देख लेंगे possible है या नहीं है. So I'll continue. So Fahad तो गालिबन mute थे या नहीं थे? Fahad, are you there now? अच्छा, फहद मेरे ख्याल से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Are you here? Alright, let's skip this part, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, हम वापस आ जाएंगे। ओके, सो एक्सप्लेन योर डायरेक्शन इन द रिज्यूमे, जो आप एग्जैक्टली करना चाह रहे हो वो उसमें नजर आनी चाहिए, और उससे रेलेवेंट होनी चाहिए जो आप रेज्यूमे में और जहाँ पे अपना सीवी भेज रहे हो। फरहा, आई कैन सी अ फ्यू पीपल इन द वेटिंग रूम। आप, आई थिंक मैं होस्ट तो नहीं बन गया? अगर आप को होस्ट हो या होस्ट हो, काइंडली आप उनको खुद से कर लो, बिकॉज आई विल जी बी जी। डूइंग समथिंग एल्स एज वेल। ऑलराइट, थैंक्स। Okay, like I said before, thank you. So like I said before, do not use one size fits all resumes. जहाँ पे आप resume भेज रहे हो वो उसके मुताबिक कस्टमाइज होना चाहिए, बिकॉज ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है ना कि आपको रेज्यूमे को खोले, पढ़े और उसके बाद उसको कंसिडर करे अगर वो रेलेवेंट है। तो अगर वो उस चीज से रेलेवेंट नहीं है और आपने एक सीवी बनाया हुआ था अपना और आपने हर जगह वो फेंका हुआ है, तो आप अपने चांसेस मिस कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के लोग होते हैं बेसिकली जो आपका रेज्यूमे देख रहे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आपके रेज्यूमे को जल्दी जल्दी देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो डिटेल में देखते हैं। जो रिक्रूटर होता है कई दफा वो उसको जल्दी में देखता है और बाद में वो किसी और आदमी के पास जाते हैं जो जरा डिटेल में स्कैन होते हैं। इन दोनों हर्डल्स को अबूर करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। ये बेसिकली क्योंकि आपका रेज्यूमे
एक आदमी ने नहीं देखना, मल्टीपल स्टेजेस पे लोगों ने देखना होता है. सो पहले तो आपको हर्डल ए क्रॉस करनी है और उसके बाद आपने हर्डल 2 क्रॉस करनी है. तो आपने रेज्यूमे ऐसे बनाना है जो इन दोनों हर्डल्स को क्रॉस करेगा. मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ. अब रिक्रूटर जो है, जो किसी भी जगह पे है, खासतौर पे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के अंदर, उसके पास बहुत कम टाइम होता है कि वो आपके रेज्यूमे को देख सके. सो वो करता क्या है कि वो उसने अपनी 4-5 टिप्स बनाई होती हैं कि मैंने ये चीज जल्दी देखनी है. वो उसने खुद नहीं बनाई होती बेचारे ने, वो बहुत जल्दी में उससे बन जाती है. उसके पास कुछ सेकंड्स होते हैं एक रेज्यूमे से दूसरे रेज्यूमे पे जाने के लिए, और खासतौर पे अगर वो सॉफ्ट कॉपीज में हो तो. सो होता यह है कि वो साइकोलॉजिकली उसके पास 4-5 पॉइंटर्स होते हैं और उसने उन 4-5 पॉइंटर्स पे जल्दी से जाना है, वो चेक करने हैं, और बाकी डिटेल्स उसने फॉर द मोमेंट नहीं देख रही एट टाइम्स. ये बात सही है या गलत है, इस बात से कतई नजर, एग्जैक्टली होगा ऐसे. तो जब जो जो चीज होगी ऐसे, आपने उसको डील वैसे करना है. सो आपने करना ये है कि जो एक फर्स्ट लुक में क्विक स्कैन करेगा रिक्रूटर, उसने ये 4 चीजें देखनी होती है जो मैंने स्लाइड पे लिखी हुई है. उसने आपकी एजुकेशन देखनी है, उसने आपका एक्सपीरियंस देखना है, और फिर उसने आपका फॉर्मेट देखना है. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सेल्स या मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वाइटल कि आपकी अपनी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो. अगर आपके अपने फॉर्मेट में मिस्टेक्स हैं, अगर आपने अपने सीवी के अंदर वो गलतियां की हुई हैं जो हम आगे चल के बताते हैं, जो डोंट्स आपसे एक्सप्लेन करते हैं, जो फॉर्मेट से रेलेवेंट है, तो वो आपको वो समझ जाएगा यार ये बंदा मार्केटिंग या कॉपीराइटिंग या एडवर्टीजमेंट या ऐसी किसी भी जॉब के लिए ठीक नहीं है, मौजूद नहीं है. तो अगर कोई जॉब बहुत लेट्स से अकाउंटेंसी की है, फाइनेंशियल जॉब है, जैसे कॉमर्स के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो अ रिक्रूटर शुड नो, अ गुड रिक्रूटर शुड नो कि उस जॉब में अटेंशन टू डिटेल कितनी इंपॉर्टेंट है. और जो साहब या साहिबा अपनी रेज्यूमे के ऊपर जो उनकी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर डिटेल्स मिस कर रहे हैं, अगर अटेंशन टू डिटेल नहीं है और उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, तो एक अच्छे रिक्रूटर को यही चाहिए कि वो सीवी को आगे ना जाने दे. तो आपने क्या करना है, आपने अपने सीवी को रेलेवेंट रखना है, मिस्टेक से पाक रखना है, ताकि आपका सीवी आगे जाए. और फिर रेलेवेंसी, तो ये 4 चीजें एक रिक्रूटर देख रहा होता है. लेट मी शो यू एन एग्जांपल कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. कि फॉर एग्जांपल मैंने जब मास्टर्स किया और मेरा एमबीए कंप्लीट हो रहा था, तो मेरे पास ऑफ कोर्स इंटर्नशिप्स के अलावा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था. हाँ, मैं अपनी हॉबी में, अपने पास टाइम में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ रेडियो पे काम करता था एज एज अ प्रेजेंटर. एक मेरी हॉबी थी. जिस तरह कुछ लोगों की हॉबी होती है कॉइन्स जमा करना, कुछ लोगों की हॉबी होती है ट्रैवलिंग करना, तो कोई आप क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना. तो मेरी हॉबी थी, मैं हल्का फुल्का अपने पास टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए रेडियो पे काम कर लेता था. तो ऑब्वियसली वो मेरी बहुत सीरियस चीज नहीं थी, वो मेरी बहुत सीरियस नौकरी नहीं थी, और मेरा मेन काम वो नहीं था. लेकिन हो ये रहा था कि जब मैंने अपना सीवी बनाया और मैंने ऐसी वर्कशॉप नहीं ली, उस टाइम ये चीजें जरा मुश्किल होती थी, तो मैंने समथिंग इज बेटर देन नथिंग को जहन में रखते हुए उसको अपने उस एक्सपीरियंस को अपने रेज्यूमे पे लिख दिया. तो वो था ये कि एजुकेशन आ रही है मेरी, फिर एक्सपीरियंस में मेरा ये हॉबी वाला रेडियो का एक्सपीरियंस आ रहा है जो उस वक्त 3-4 साल हो चुका हुआ था, और उसके बाद बाकी चीजें मेरे रेज्यूमे पे फॉलो कर रही हैं. तो मेरे बहुत से दोस्त थे जिनको लगता था कि मेरा सीवी का फॉर्मेट बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने मुझसे मेरा फॉर्मेट लिया, जैसे जैसे मैं पहले बता रहा था आपको इस प्रेजेंटेशन में. उन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, और 2 एक जगह पे ऐसे हुआ कि किसी जॉब पे एग्जैक्टली सेम रेज्यूमे, एग्जैक्टली सेम क्वालिफिकेशन, ऑलमोस्ट सेम जीपीए, और मेरे पे तो एडिशनल एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में लिखा हुआ है और उसके रेज्यूमे पे वो एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ. तो मेरी नजर में तो मैं जरा उससे ऊपर जा रहा था, लेकिन उसको कॉल आ रही है 2 एक जगह पे इंटरव्यूज की, मुझे नहीं आ रही. दैट रैंग अ बेल कि यार एबीसी को कॉल क्यों आई उस इंटरव्यू के, मुझे क्यों नहीं आई. क्योंकि मैंने ऑब्वियसली, हर आदमी कुछ गलतियां करके सीखता है, वो मेरी गलती थी. और मैं इस बारे में थोड़ा सोचा यार कि क्या एग्जैक्टली मैंने किया है. उसने फॉर्मेट तक मुझसे लिया है, मेरा एक्सपीरियंस मेरी नजर में उससे ज्यादा है, उसको कैसे कॉल आ सकती है. और ऐसा एक दफा नहीं हुआ, ऐसा 2-3 दफा हुआ. और हमारा जीपीए भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ. वो चीज मुझसे उस वक्त आइडेंटिफाई हुई भी नहीं. हुआ ये कि उसके बाद कुछ 1.5-2 साल के बाद मैं एक जगह पे काम कर रहा था जहां पे मुझे अगेन, मैं रिक्रूटर था और मैं उस साइड पे टेबल के आ चुका था, और मेरे पास दिन में मुझे कुछ 100-150 सीवीज निकाल के कुछ शॉर्ट लिस्टेड सीवीज आगे भेजनी होती थी हमारे एक क्लाइंट को जो यूके में था. बेसिकली इट वाज एन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जॉब, माय फर्स्ट जॉब. तो
तब मुझे ये पता चला, जब मैं उस एक्सपीरियंस से गुजरा, कि जब मैं बहुत सारी रेज्यूमेस रोजाना देखता हूं, तो मैं एक सीवी को बहुत डिटेल में इस तरह नहीं देख पाता कि ये जो इसका एक्सपीरियंस है ये तो इसकी स्टडी लाइफ के दौरान का है, ये एक्सपीरियंस इसके जो ऊपर, उसके ऊपर जो डेज लिखे हुए हैं, जो डेट्स लिखी हुई हैं, वो इसकी इसके एजुकेशन के बाद की नहीं है, वो दौरान की हैं। तो अगर मैं उस कोई रिक्रूटर उस बात को गौर से देखता तो सोचता कि हाँ ये तो इसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी। तो हो क्या रहा था, जो मैं फिर बाद में उस नतीजे पे पहुंचा कि रिक्रूटर क्या करता था, वो सीवी निकालता था, वो जल्दी से मेरा एक्सपीरियंस देखता था जो कि कंप्लीटली इरेलेवेंट था, और वो मेरे सीवी को साइड पे कर देता था, क्योंकि फिर बाद में एग्जैक्टली मुझे वो चीज करनी पड़ रही थी और मैं टेबल की उस तरफ था, तो मैंने ये नोटिस कर लिया। सो पहले स्टेप पे जब आपने अपने रिक्रूटर से अपनी सीवी को आगे लेकर जाना है, जिसने बहुत क्विकली स्कैन करना है आपके रेज्यूमे को, तो आपने इन 4 चीजों का ख्याल रखना है कि इन 4 चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपकी एजुकेशन बड़ी क्लियरली मेंशन हो, डिग्री, जीपीए, हर चीज उसके ऊपर मेंशन हो, कुछ चीज मिसिंग मत हो। एक्सपीरियंस अगर है तो रेलेवेंट हो, वरना आप उसको मत लिखो। और जो उसका फॉर्मेट है उसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, और मोस्ट जॉब्स के अंदर अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो रेलेवेंट हो, और आपकी सीवी उस चीज से रेलेवेंट हो जहां पे आप भेज रहे हो। तो ऑफ कोर्स ये 4 चीजें रिक्रूटर देखेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि जब हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे अब आपका सीवी डिटेल में स्कैन होना, ये नॉर्मली कौन सा आदमी होगा, ये या तो एक्सपीरियंस्ड रिक्रूटर होगा, उस डिपार्टमेंट का कोई सीनियर होगा, या फिर उस टीम का आदमी होगा जहां पे ये हायरिंग हो रही है, उसका लाइन मैनेजर होगा, या फिर कोई, जब आप इंटरव्यूज क्रॉस करते हुए जा रहे हो और आपका सीवी आगे जा रहा है, तो ये आखिर में कोई CHRO होगा या कोई सीनियर इंडिविजुअल, कोई वाइस प्रेसिडेंट कंपनी का होगा जो आपके रेज्यूमे को देख रहा होगा। अब आपने उसकी एनक लगानी है और अपने सीवी को देखना। तो अब वो क्या देखेगा कि आपके रेज्यूमे के अंदर वो अटेंशन टू डिटेल्स देखेगा, कि आपके रेज्यूमे के अंदर डिटेल्स कैसे मेंशन है, कि आपने छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा हुआ है। और व्हेन आई से अटेंशन टू डिटेल, तो इसका सर मतलब ये, आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए। जी सर, सर एक्चुअली इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं एट अ पार्ट, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब होती है, तो वो हम अपनी सीवी में नहीं लिख सकते? हाँ, तो फिर आप उसके ऊपर लिख दो ये पार्ट टाइम एक्सपीरियंस था, आप उसके ऊपर मेंशन कर दो। आप उसके, पार्ट वरना टाइम, वरना ये होगा कि रिक्रूटर जल्दी से पढ़ेगा। हाँ, उसके ऊपर लिख हाँ दो, ताकि फिर वो आपके हक में जाएगा ना। अगर आपने ठीक, अब वो उस मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा का नाम होगा लिखा, अपनी वहां पर डेजिग्नेशन लिखी, जी। हाँ, तो फिर आपने आगे ब्रैकेट्स में लिख दिया पार्ट टाइम। तो अब मिसाल के तौर पे अली गौहर उस सीवी को पढ़ रहा था, तो उसको मालूम होगा कि ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो उसने की थी। तो हाँ, अब वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग हो गया। वरना वो मतलब क्या ये, होगा कि अली गौहर या कोई भी रिक्रूटर, ठीक है बताइए बताइए। सर। मैं ये कह रही थी कि फिर वो मेरा एक एक्सपीरियंस मतलब सीवी में मतलब एक देखा जाएगा कि अच्छा इस बंदे ने ऐसे जॉब की है, एक्सपीरियंस मतलब इसका है इसमें। देन इट, फिर एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है वो कितना रेलेवेंट, जिसे जो जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक ओके है, अगर आप ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक किसी अकाउंट्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपने जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो पार्ट टाइम ब्लॉगर का है, आपने किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाकर आप ब्लॉगिंग करते हो, तो वो हाँ इस तरह काउंट होगा। वो एज एन नंबर ऑफ इयर्स काउंट नहीं होंगे, एज एन एक्सपीरियंस, बट वो आपको जो हायर कर रहा है, जो बंदा जो आपका प्रोफाइल देख रहा है, उसके लिए वो इस तरह काउंट होगा कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इसको कुछ कॉर्पोरेट लाइफ का पता है। अगर ये लेट से ब्लॉगिंग करता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तो वो चीजें अंदाजा लगाने में उसको हेल्प करेंगी। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट एक्सपीरियंस, बट इट विल हेल्प इन दैट वे, कि देन बिकॉज अगले अगले बंदे को ये मालूम होगा कि आपको कुछ चीजों का आइडिया है और आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट से थोड़े से बेहतर हो। आगे चलते हैं। ओके, सो व्हेन आई से अटेंशन टू डिटेल, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर चीज डिटेल में लिखनी है, इसका मतलब वो नहीं होता। अटेंशन टू डिटेल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक अपनी जॉब में लिखा है मंथ्स मेंशन करते हुए SEP 2020 यानी सितंबर 2022, DEC 2020, तो नेक्स्ट जॉब में सितंबर पूरे स्पेलिंग्स और दिसंबर पूरे स्पेलिंग्स के साथ मत हो, वो चीज आगे चले। वो जो भी आप फॉर्मेट यूज कर रहे हो वही एग्जैक्टली आगे चले। अगर आपने अपनी 2 जॉब्स मेंशन की हुई हैं और एक के अंदर आपने डेजिग्नेशन पहले लिखा है, कंपनी का नाम बाद में लिखा है,
और फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी भी आपने गलत कर दिया, ये गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसमें लोगोस अटैच कर दिए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के, और लोगोस पिक्सेलेट हो गए हैं, वो स्ट्रेच हो गए हैं, आपने उनको छोटा करने की कोशिश की है, तो वो UMT का UMT इतना बड़ा हो गया और बहुत पतले पतले हो गए हैं। तो वो चीजें बहुत मैटर करेंगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। फिर सेकेंडली, एक्सपीरियंस गैप्स। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल में मैंने देखा कि बहुत से लोगों की पहली 2-3 जॉब्स 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल पे आ गई हुई हैं। तो होता यह है कि कई दफा आप उसको शॉर्ट जॉब्स को लिखते हो, और फिर कई दफा आप उन जॉब्स को अपने CV से उड़ा देते हो। जब आप उड़ाते हो तो गैप्स आते हैं। अब या तो आप थोड़ी सी गलत हरकत करोगे एंड फाउल प्ले करोगे, और आप अपने पिछले और अगले एक्सपीरियंस को स्ट्रेच करोगे ताकि वो जॉब कवर हो जाए, तो ये तो गलत होगा और आप कहीं नहीं पकड़े जाओगे। आपके एक्सपीरियंस लेटर्स आपके पास उससे मैच नहीं करेंगे और आप फिर ज्यादा बुरे मसले में फंसोगे। वो तो नहीं करना। लेकिन अगर गैप्स हैं, तो अगर गैप्स आ गए हैं तो बेहतर कि उनको रहने दो, कोशिश करो कि ऐसी चीज हो मत। बेहतर तो ये है कि कोई चीज ऐसी होनी ही नहीं चाहिए, वरना उसको आप किसी अनफेयर मीन के थ्रू छुपाओ नहीं। एंड थर्ड, जो कि डिटेल स्कैन में ऑब्वियसली दैट्स द मीट ऑफ एवरीथिंग, कि आपका कैलिबर चेक किया जाएगा उस इंटरव्यू के थ्रू, उस रेज्यूमे के थ्रू, कि आपने एग्जैक्टली वो सॉलिड काम किया है जो उस जॉब के लिए चाहिए या नहीं किया हुआ। तो 2 तरह के लोगों से आपको गुजरना है, और इन 3-3, 4-4 चीजों को जहन में रखना है। अब हम चलते हैं बारी बारी उन 5-6 हेडर्स पे। मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि हम जरा स्लो चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं ज्यादा फास्ट हो जाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा। अब हम चलते हैं उन 4-5 चीजों की तरफ, उन हेडर्स की तरफ जो हमने एक्सप्लेन की थी कि एक रेज्यूमे के अंदर कुछ हेडर्स होता है। अब वो हेडर्स, पहला हेडर होता है उसका ऑब्जेक्टिव, या नॉर्मली आपके नाम पते के बाद, सब कुछ के बाद, एंड दैट्स उसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे डूज एंड डोंट्स में आते हैं कि आपने नाम पता अपना कैसे लिखना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके रेज्यूमे जहां से शुरू होता है वो या तो आपके ऑब्जेक्टिव से या समरी से शुरू हो रहा होता है। अब इन 2 चीजों में, ये मैंने एक इसमें से रेज्यूमे की, एक इसमें ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल है और एक समरी की एग्जांपल है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट सी एवरीवन हियर, अब्दुल मुईद, if you can tell me कि इसमें से फर्स्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव है या समरी है। आप इसको पढ़ो और आप बताओ आपके ख्याल में क्या है। Sir, I'm actually co-hosting as a staff. Can so people I unmute would themselves? Yes, I would suggest if you can ask any student and we'll let them unmute themselves and then speak to it. Select someone because Fahad All Alam right, selected all right. last time. Hamza Riaz. Yeah, just a second. All right. Hamza Riaz, आप बताइए मुझे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये ऑब्जेक्टिव है या समरी है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कैसी चीज को खेलना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में क्या है। हमजा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला नईम, you raise your hand, you can tell me. सर ऑब्जेक्टिव लग रहा है। ऑब्जेक्टिव लग रहा है, ओके। इसके अलावा अफशान रियाज, आप मुझे बताइए कि सेकंड चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव या समरी है? अफशान, यू देयर? ओके, आगे चलते हैं। जुहा खान, आप बताइए। ये अफशान की आवाज नहीं हो सकती। सेकंड समरी, ठीक है। बता जो भी थे, आपने बिल्कुल सही आंसर किया। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज चाहिए हो सकती है। जब आप फ्रेश ग्रेड होते हो तो नॉर्मली आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो। ऑब्जेक्टिव जब आप लिखो तो काइंडली वो कॉपी पेस्टेड नहीं होने चाहिए प्लीज। अब हम इट्स 2021, टू फाइंड अ जॉब इन एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू माय पोटेंशियल, दिस तो 1990। अब हमें उससे आगे आ जाना चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें खुद अपनी अंग्रेजी में खुद लिखने चाहिए, किसी दोस्त की कॉपी नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत दफा किया हुआ है खुद एज एन इंटरव्यूअर, लोगों से पूछा हुआ है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, और लोगों को नहीं पता होता बिकॉज उन्होंने किसी जमाने में वहां पे कॉपी पेस्ट किया होता है और उसके बाद उन्होंने कभी उसको पढ़ा भी नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव आपका अपना एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली आप वो रेज्यूमे वहां पे क्यों भेज रहे हो, एग्जैक्टली क्या प्लान है आपका लाइफ में। बेहतर है कि सिंस थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं भी हो तब भी प्रोफेशनल समरी ही लिख दो। कैसे?
अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू, अपने इंटरेस्ट के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एनी रैंडम नेम फ्रॉम हियर, मरियम मंजर. अगर वो ये समझती हैं कि अभी वो उन्होंने मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली यूएमटी से बीबीए किया है और अभी उनके पास 2 इंटर्नशिप्स हैं और वो मार्केटिंग में हैं, तो इट्स ग्रेट. आप बता दें कि जी एन एस्पायरिंग मार्केटिंग एंथुजियास्ट, have a couple of internships, and in marketing I want to consider, let's say, product or development or branding, और इस तरह की 2-3 चीजें लिख दें जो exactly आप करना चाह रहे होते हो. It gives a live impression to the recruiter कि भाई ने जो चीज लिखी है वो सही लिखी है या नहीं लिखी हुई. So I would prefer summary, but आप ऑब्जेक्टिव या समरी में से कुछ लिख सकते हो. अगर आप फ्रेश ग्रेड हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ दो, फिर बेहतर है कि आप समरी ही लिखो. जी, आई थिंक यू कैन हियर मी नाउ. ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं. ये हम डिटेल्स की बात कर रहे थे कि हमें अपने रेज्यूमे में कोई डिटेल मिस नहीं करनी चाहिए. तो ये मैंने कुछ सैंपल डिटेल लिख दी अपनी स्लाइड्स पे आपके सामने कि एक साहब हैं, उन्होंने एक ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी का नाम एक रैंडम है, इसमें हर डिटेल रैंडम है. दिस इज नॉट एन एक्चुअल डिस्क्रिप्शन. सो एग्जैक्टली आपने क्या किया है, किस ईयर में किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कितना जीपीए किया है, ये सब डिटेल्स लिखना बहुत जरूरी है. अगर हमें किसी अपनी डिटेल पे बहुत फख्र नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ओवरकम दैट थिंग. व्हाई डोंट यू, बिकॉज लाइफ इज नॉट ओवर, सो व्हाई डोंट यू डू समथिंग बेटर जो कि उस चीज को हाइड करे, जो उस चीज को हाइड ना करे, उसको कम दिखाए और आपकी बेहतर चीज को ज्यादा दिखाए. सो व्हाई डोंट यू इम्प्रूव अपॉन दैट. एंड इफ इट इज समथिंग जो कि आप पास में जाके अनडू नहीं हो सकती, तो फ्यूचर में चीजें बेहतर हो सकती हैं, उनको लिखिए. अगर बिकॉज ये तो एजुकेशन आप ले चुके हो, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते तो ओन इट, लेकिन कुछ चीज छुपाओ मत, उसका कोई फायदा नहीं है. उसका उल्टा नुकसान है. कहीं पे आपका रेज्यूमे सिर्फ इस वजह से कि रिक्रूटर को कुछ डिटेल्स चाहिए थी और वो आपने नहीं लिखी थी, तो आपका रेज्यूमे आगे नहीं जाएगा. तो ये 4 बेसिक डिटेल्स आपकी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन एस्पेक्ट से बहुत जरूरी है. फिर हम आते हैं प्रोजेक्ट्स पे. आपसे रिलेवेंट ज्यादा है ये. कई लोगों से, और शायद कभी मुझसे भी ऐसी गलती हुई होगी कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को बहुत मिक्स कर दिया होगा. भाई फाइनल ईयर FYP का अपना एक मकाम है, उसको अलग से बताना है, बाकी प्रोजेक्ट्स को अलग से बताना है. सो उन दोनों में, बिकॉज एक रिक्रूटर के लिए, एक हायरिंग एजेंट के लिए उस पर फोकस करना आसान है कि एग्जैक्टली जब आपने अपने 8 या 4 सेमेस्टर या जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम था, उसके जब आप उसको कंक्लूड कर रहे थे और आप प्लान कर रहे थे कि मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में, तो वो क्या था और उसके अंदर फिर आपने क्या किया था. तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंटली बताओ. हाँ, अब हो सकता है कि मिसाल के तौर पे बासित से ये गलती हुई हो कि उस वक्त उसने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सही चूज ना किया हो और अब उनका प्लान लाइफ में कुछ और हो, तो ठीक है, आप मेंशन कर दो, लेकिन इंपॉर्टेंस अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को जरूर दो, उनके ऑर्डर के अंदर और डिटेल के अंदर. अपने जो आपका रेलेवेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर ज्यादा बताओ. अब हम आते हैं कुछ डूज, क्विकली कुछ डूज एंड डोंट्स के ऊपर आते हैं कि कुछ चीजें हमने रेज्यूमे पे करनी है लाजमी और कुछ हमने बिल्कुल नहीं करनी. फॉर एग्जाम्पल एक्शन वर्ब्स. बहुत जरूरी होता है कि आपका रेज्यूमे बहुत फास्ट पेस्ड लग रहा हो, उसके अंदर बहुत लंबी लंबी बेकार की डिटेल्स ना हो, तो उसको उसको बहुत एक्शन ओरिएंटेड बनाते हैं एक्शन वर्ब्स. आप उसको फास्ट पेस्ड रखते हो. सेकेंडली, शॉर्ट एंड कंसाइज सेंटेंसेस. कई दफा हमें कुछ रेज्यूमे लिखने का इत्तेफाक होता है जिसमें पूरे पूरे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं अपनी एक जॉब के बारे में. मैंने ये किया, फिर मैंने वहां पे लीडरशिप दिखाई, मैंने यहाँ पे वो किया. तो जितना आप उसको अनसब्जेक्टिव रखते हो, ऑब्जेक्टिव नहीं करते हो, जितना आप उसको सब्जेक्टिव रखते हो, सॉरी, और ऑब्जेक्टिव नहीं करते हो, तो आपका रेज्यूमे ख्याली बातें लग रहा होता है. तो उससे ख्याली बातों से हर एक की जान जाती है. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ने घर में कोई ड्राइवर रखना है और आप उससे पूछते हो कि भाई आपको मिस्टर मेडिकल कॉलेज पढ़ती पेपर ले काइंडली म्यूट योरसेल्फ. होस्ट आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से. ओके, थैंक यू. ऑलराइट, सो
एक्शन वर्ब्स और लंबे सेंटेंसेस में फर्क क्या होता है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप घर में कोई ड्राइवर रखते हो, आपसे कोई ड्राइवर मिलने के लिए आप उससे बात करते हो और आप कहते हो कि यार भाई मैं आपको ड्राइविंग पे क्यों रखूं, तो अगर तो आपको ये बताता है कि इससे पहले मैंने 3 घरों में काम किया, वहां पे मैं ये गाड़ी चला रहा था, मुझसे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा कभी कोई चालान नहीं हुआ, तो ये हो गए सारे एक्शन वर्ब्स। अगर वो कहता है जी मैं बहुत अच्छा ड्राइवर था, मैं बहुत कमाल का ड्राइवर था और मैंने बड़ी मेहनत से काम किया हर दफा और मेरे साहब मुझसे बहुत खुश थे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ख्याली लग रही होंगी कि यार ये तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो कुछ आपको नंबर्स के साथ बता रहा होगा, ड्राइवर है हालांकि, लेकिन अगर वो आपको बता दे जी सर मेरा कभी चलान ही नहीं हुआ आज तक, या मेरे सिर्फ 2 चलान हुए थे, या मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, या मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ बम्पर पे एक साइड पे हल्का सा ऐसे हुआ था, मैंने इतनी गाड़ियां चलाई हैं, मैनुअल भी चलाई है, ऑटोमेटिक भी चलाई है, मुझे और गाड़ी की देखभाल भी मैं बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, मैं उसकी हफ्ते में 2 दफा सर्विस भी खुद, मतलब जो जो चीजें कर सकता है, तो ये सारी चीजें एक्शन वर्ब्स हैं, ये एक्सप्लेन कर रही हैं। और तो इवन अगर ड्राइवर को समझने में आपको ये चीजें आसान लग रही हैं, तो इमेजिन करें कि अगर आप माशाल्लाह इतने अच्छे तालीम याफ्ता होने के बाद अपने आप को बेहतर तरीके से पोर्ट्रेट नहीं करेंगे हम सब, तो बहुत मजे की बात नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये बात थोड़ी सी रिपीट हो गई कि FYP को सेपरेटली बाकी प्रोजेक्ट से होना चाहिए। हम आगे चलते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाओगे और तीसरी चौथी जॉब में भी होगे और आपको फिर ये कहीं वर्कशॉप हल्की सी याद आएगी, तो ये याद रखना कि जितने आप उसमें नंबर्स डालते हो कि मैंने 75% ये चीज इंप्रूव की, 30% ये की, मैंने इतना अपना पोर्टफोलियो इस इतने डॉलर्स से इतने रुपीज से बढ़ाकर इतना किया, उससे अगेन वो काम की बात ज्यादा लग रही होती है, ख्याली बातें कम लग रही होती हैं। तो डू यूज अमाउंट्स, नंबर्स, रेट्स रादर देन बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप कल के मैच के बारे में कहीं से पढ़ रहे हो और आपको सिर्फ इतना पढ़ने को मिल रहा हो कि फखर जमान ने बहुत अच्छा खेला, डिकॉक ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया जो कि बहुत कुछ लोगों के लिए स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन आपको कुछ स्कोर ना बता रहा हो कि भाई मैच का बना क्या, स्कोर कितना किया था, फखर जमान ने अच्छा किया था तो कितना स्कोर किया था, तो आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगी ना। आप कहोगे बहुत अच्छा, स्कोर कितना था, तो वो आगे से कहे 25, तो आप समझ जाओगे 25 फिर इंपॉर्टेंट क्यों था। फिर आप, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं आपको। तो अगर वो आपको बताते हैं नंबर्स के साथ कि फखर जमान ने 193 किया और वो ऑलमोस्ट 200 करने लगा था और पाकिस्तान 17 रन से हार गया, गालिबन यही स्कोर था कल, अगर मैं कुछ ऊपर नीचे नहीं कर गया, तो आपको एग्जैक्टली सिचुएशन समझ में आ रही होती है। सेम एज द केस विद योर रेज्यूमे, कि अगर आप एक रिक्रूटर हो और आप बताते हो कि मैंने 500 लोग हायर किए हैं पिछले 3 महीने में और मैंने इतनी, अगर आप ट्रेनिंग साइड पे हो तो इतनी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, तो दैट मेक्स इट मोर रेलेवेंट। कीप रेज्यूमे वेरी इजी टू रीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके वो दोस्त होते हैं जब आपको लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप पे और आप उनका मैसेज नहीं पढ़ते। ऐसे होता है ना जब कुछ लोग फोन पे बहुत लंबी बात करते हैं तो फिर आप उनकी बात नहीं सुनते, आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर आप हूँ हाँ करते हो। ये बिल्कुल सेम वैसे ही रेज्यूमे के ऊपर भी होता है। जब उसके ऊपर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उसमें लंबी लंबी डिटेल्स होंगी, तो वो बहुत ज्यादा रीडेबल नहीं रहेगा। सो दिस ऑडियंस आई बिलीव इज द वन जिनके पास एक्सपीरियंस कम हो सकता है, एक दो इंटर्नशिप्स हो सकती हैं, एक आधी जॉब हो सकती है, ज्यादातर फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे। आपके लिए रेज्यूमे को एक पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इट्स नॉट रिकमेंडेबल। पहला साल में जब आपके पास एक्सपीरियंस कम है या नहीं है, तो आपका रेज्यूमे सिर्फ एक पेज का होना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा तो उसके अंदर अननेसेसरी डिटेल्स ज्यादा होंगी। उससे क्या होगा, रिक्रूटर के पास टाइम कम होता है, वो उसको पढ़ेगा नहीं, किसी और आदमी का रेज्यूमे पढ़ लेगा और वो आगे जा सकता है। सो आपने उस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से निकलना है, तो आपका रेज्यूमे बड़ा शार्प और क्रिस्प होना चाहिए और एक पेज का होना चाहिए। हाँ, ये खैर अब तक इट्स 2021, तो आई अज्यूम कि ये बातें हर को पता होनी चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस आपका रेज्यूमे नाइटिंगेल या वॉरियर या अली स्पेक्टेकुलर ना हो तो अच्छा है, बल्कि बहुत वाइटल है, खास तौर पे अगर आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो जो थोड़ी पब्लिक डीलिंग की है, जिसमें जिसमें मार्केटिंग भी है, HR भी है, ब्रांडिंग भी है। अगर आप और इवन ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, अगर आप इन चीजों पे हो जिनमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपके रेज्यूमे के अंदर चीता या प्रिंसेस या ग्लोरी इस तरह की चीजें आ रही है, तो ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी अ गुड साइन और
फ्रेंकली अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं तो साइड पे कर दूंगा. सो एंड आई हैड टू से दिस थिंग टू गिव यू अ रियल लाइफ फ्लेवर. मैं बड़े आराम से कह भी सकता था कि नहीं कोई बात नहीं, ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ अपफ्रंट नहीं होऊंगा तो फिर इस पूरे टाइम का हम ऑलरेडी तकरीबन 1 आवर स्पेंड कर सके, इसका फायदा नहीं होगा. सो द ईमेल एड्रेस शुड बी वेरी रेलेवेंट. अच्छा, फिर जो एड्रेस है, जो बाकी पोस्टल एड्रेस है, अगर वो बहुत लंबा है तो इतना लंबा है. देखें, आपके रेज्यूमे के ऊपर से एड्रेस पढ़ के किसी ने आपको खत नहीं लिखना. एड्रेस इज जस्ट देयर टू हेल्प टू फाइंड अ लोकेशन. कि बाज औकात आप देख लेते हैं कि आपके ऑफिस से कितनी दूर है. वैसे एड्रेस ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. एड्रेस इज नॉट अ रिक्वायर्ड डिटेल. हम वो डोंट्स में आते हैं तो हम वो बातें मेंशन करते हैं कि आपने कौन सी चीजें नहीं लिखनी. डोंट्स, जो चीजें हमने रेज्यूमे पे हरगिज नहीं करनी. हमने आई बी माय ना करें. आई हैव डन दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस. दिस इज बैड अंग्रेजी. दिस इज नॉट टू द पॉइंट अंग्रेजी. तो अगर मैंने लिखना है कि आई रिक्रूटेड 75 प्रोफेशनल्स, तो खाली रिक्रूटेड 75 प्रोफेशनल्स सर्व्स द पर्पस. हाँ, अब जब आपने रेज्यूमे लिखा है, उसका रेज्यूमे का नाम क्या होना चाहिए? उसका जो फाइल नेम है, वो सीवी नहीं होना चाहिए. खाली CV 129 नहीं होना चाहिए. अली गौहर CV फाइनल नहीं होना चाहिए. ये बहुत मैटर करता है. हमें उसको उतना हम उसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे होते, बट रिक्रूटर ने उसके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है. उसने आपका हाथ देख के फैसला नहीं करना कि आपको हायरिंग करना. उसके पास यही इंडिकेशंस तो आनी है. उसके पास यही 4-5 तरीके हैं ये जज करने के लिए कि मरियम, मंजर या कंदील या अफशा या अली गौहर उसके लिए राइट रिसोर्स हैं या नहीं है. तो वो 4-5 चीजें यही होती हैं कि उसने देख लिया कि अगर अली गौहर ने लिखा ही हुआ है अली रेज्यूमे फाइनल अपडेटेड लास्ट 3 to 9, अली गौहर को कभी कॉल नहीं आनी चाहिए. जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है अपने रेज्यूमे से निकाल दें. मिसाल के तौर पे आपका 5, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स निकाल दें उसके अंदर से. अब प्रोजेक्ट्स की बेस पे किसी ने आपको नौकरी नहीं देनी. कोई ऐसी इंटर्नशिप है, कोई ऐसी प्रोजेक्ट है जिसका कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है, उसको अपने रेज्यूमे से फारिग करें ताकि आपका रेज्यूमे क्रिस्प बने. मिस रिप्रेजेंटेशन हरगिज मत करें. जो चीज आपने नहीं की, जो काम आपने नहीं किया. कुछ अर्सा पहले तक मेरा ये ख्याल था कि लोग रेज्यूमे पे तो मिस रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लिंक्डइन पे नहीं करते होंगे एटलीस्ट, बिकॉज लिंक्डइन तो उसके कोवर्कर्स भी देख रहे होते हैं और पास्ट के कोवर्कर्स भी देख रहे होते हैं. लेकिन अब तो अनफॉर्चुनेटली लोग लिंक्डइन के ऊपर भी अपनी इंफॉर्मेशन को गलत रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज ऑफ कोर्स वेरी रॉन्ग. और उस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनको मालूम भी नहीं चलता कि वो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी जो उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क आने की वजह से उनको नहीं मिली होंगी. हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है अगर वो इंटेग्रिटी एटलीस्ट शो कर रहे होते. अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी 3rd जॉब पे हो और आप किसी का रेज्यूमे देखते हो जो आपके साथ आपकी 1st जॉब पे था और उस पर लिखा होता है कि उसने वो डिपार्टमेंट लीड किया था और वो 3-4 प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं जो उस काम में उसने किए थे जो आपको पता है उसने नहीं किए थे, या एटलीस्ट उसमें बहुत पैसेंजर था, या उसने लीड नहीं किया था, उसने आपको मिस रिप्रेजेंट किया होता है. तो वन, दिस इज अनएथिकल. और जो भी चीज अनएथिकल या आइडेंटिटी जो इंटेग्रिटी के अगेंस्ट होती है, बहुत पुराना जमाना था जब ये चीजें चल जाती थी. विद टाइम गोइंग अहेड दिस इज वेरी गुड कि अब एथिकल चीजें, इंटेग्रिटी से रिलेवेंट चीजें ज्यादा मैटर करती हैं. कंपनी की कोर वैल्यूज में शामिल होती हैं इंटेग्रिटी और एथिक्स रिलेवेंट चीजें, which is awesome. So in this way the world is becoming corporately a better place. So ऐसी हरकतें हमने नहीं करनी. अच्छा, आपका CNIC नंबर आपके रेज्यूमे पे नहीं चाहिए. अबू का नाम हमने CNIC पे डाल के क्या करना है? ब्लड ग्रुप का क्या फायदा है हमारा CNIC पे, सॉरी, रेज्यूमे के ऊपर. रेज्यूमे के ऊपर ब्लड ग्रुप का कोई फायदा नहीं है. आपके करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, या फौज में अप्लाई कर रहे हो, पुलिस में अप्लाई कर रहे हो, तो उनके फॉर्म पे जरूर ये चीजें लिखें. हमारी कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ का किसी ने कुछ नहीं करना. हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा. और खासतौर पे पासपोर्ट नंबर, मैरिड, मैरिटल स्टेटस, इसकी कोई जरूरत नहीं है. इनको अपने CV से इन चीजों को फौरन हटा दें. ओके, now I'm almost done with the presentation part. Now I have a question from the host.
क्या ये पॉसिबल है? अब हम दो तरीके से अगली अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर चल सकते हैं। या तो हम क्वेश्चन आंसर्स खोल दें अभी, या अगर हमने हमारे पास ब्रेकआउट रूम की ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस जूम अकाउंट से जा रहे हैं। अगर हमारे पास ब्रेकआउट रूम की ऑप्शन है, फरा या जो भी इसको होस्ट करें काइंडली मुझे बता दें। हम इन तमाम लोगों को जो 181 लोग हैं रैंडमली ब्रेकआउट रूम्स में भेज देते हैं, और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने करना क्या है। बट प्लीज प्लीज टेल मी, फर्स्ट लेट मी नो कि हम ब्रेकआउट रूम्स कर सकते हैं या नहीं। Sir, students will write their questions in chat. Then you may answer that questions. नहीं, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ फिर। Yeah. क्वेश्चंस तो हम कर ही सकते हैं। मैं आई वांटेड टू डू एन एक्सरसाइज, अगर हम टेक्निकली पॉसिबल है हमारे जूम अकाउंट पे जिससे हम होस्ट कर रहे हैं, कि हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, लोग अपने 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 5 या 10 लोग जो अपने ग्रुप में हैं वो अपना कोई एक सीवी उठाएंगे बना सकते हैं, और वो हमने सीवी सेशंस करना है। ठीक ठीक करके मुझे ईमेल कर देंगे, और हम उन सीवीज को डिस्कस कर लेंगे। यानी कि जो हमने पढ़ा है सारा अभी, उसको हम अभी एक्सरसाइज कर लेंगे। तो अगर तो ये पॉसिबल है तो हम कर लेते हैं, वरना फिर हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आंसर पे चले जाते हैं। इट्स फाइन, इट्स फाइन इधर वेज। बाय द वे, अगर हम नहीं भी कर सकेंगे, your OCP has my email address. Feel free to send me your resumes. Feel free to send me your resumes in Word format. और उसके सब्जेक्ट में UMT जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्यों आए मेरे पास। तो मैं आपके रेज्यूमे को देखकर, अगर बहुत सारे ना आ गए तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ आते हैं तो हम उन रेज्यूमेस पे बात कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट रूम में हम अभी जा सकते हैं तो ये काम अभी हो जाएगा। यस सर, हम ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट कर सकते हैं। वो आप बता दें कि किस तरह करना है, कितने पार्टिसिपेंट्स के साथ चलें, ग्रेट। करना है। अब आपने, हाँ, आप रेंडमली क्रिएट कर दें। आप अभी हमारे पास 175 के करीब लोग हैं, तो मैक्सिमम जितने भी ब्रेकआउट रूम में जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 जा सकते होंगे या 20 जा सकते होंगे, तो मैक्सिमम के साथ आप कर दें, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट। और जितने भी ग्रुप्स बनते हैं 10 12 15 वो कर दें। और करना क्या है, आपके पास 15 मिनट होंगे, 15 मिनट्स होंगे। आपने अपने ब्रेकआउट रूम में से अंदर जिसका कोई रेज्यूमे, किसी एक का रेज्यूमे पकड़ना है, उसको आप लोगों ने खुद स्क्रीन शेयर करके आपस में डिस्कस करना है, उसको ठीक करना है, और आपने और आपने अपने पास रख लेना। फिर जब हम आएंगे सारे वापस, हम उस रेज्यूमे को खोल लेंगे, अपने सामने रखेंगे, और देखेंगे कि किस ब्रेकआउट रूम वाले ने, ग्रुप ने अपने रेज्यूमे को सही से इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपडेट कर लिया या नहीं कर लिया। इजी? या राइट। जब आप अपने ब्रेकआउट रूम में चले जाओगे तो आपके पास 15 मिनट्स होंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ओके।
अच्छा अली साहब, ये कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, ब्रेकआउट रूम तो हमने बना दी हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स अपने अपने मोबाइल्स पर हैं, तो वो अभी सीवी अपलोड भी नहीं कर पा रहे कई। तो आई चलो वंडर्ड ऐसा अगर कर इस एक्टिविटी में हम ऐसे कर सकते हैं कि सीवीज बच्चों की आपसे फिर शेयर कर देंगे, एंड यू कैन स्पेयर अ टाइम टू सजेस्ट दोज हु रियली वांट गेट अ इवैल्यूएशन ऑफ देयर रेज्यूमे। और करंटली जो क्वेश्चन आंसर्स हम आए हैं वो लेके तो इसको फिर क्लोजिंग की साउंड्स तरफ ले गुड। जाएंगे। और हाँ, और आई कैन सी बहुत से लोग ब्रेकआउट रूम में जा भी नहीं सके हैं, तो आई हाँ, जा अंडरस्टैंड योर भी नहीं पॉइंट। सकते। हम्म। तो हम इसको कर लेते हैं, वापस सबको बुला लें, ब्रेकआउट रूम जी क्लोज कर लें ओके। और हम इसको यहाँ से ले लेते हैं फिर। ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। Now I would like to take questions of the students, whereby I would like to request Mr. Ali Gohar to answer the questions of students. जी श्योर। फॉर द रेज्यूमेस आप लोग अपने उस CLP से मेरा ईमेल एड्रेस ले सकते हो। जब आप मुझे अपने रेज्यूमेस भेजो तो काइंडली सब्जेक्ट के अंदर UMT जरूर लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट के अंदर ब्रैकेट्स में, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि ये किस चीज़ के लिए है। और एज मच एज पॉसिबल हम उसको रिप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें, वो ये कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वो आप ठीक करके भेजेंगे। आपने अपना CV उठा के सीधा भेज नहीं देना। जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपने अपनी पूरी एफर्ट से उनको ठीक करना है, और फिर एक प्रोस्पेक्टिव जॉब लिख देना कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे होगे, तो ये रेज्यूमे भेजोगे, वरना उसकी मैं रेलेवेंसी चेक नहीं कर सकूंगा। सो सब ब्रैकेट आप अपने सब्जेक्ट के अंदर ब्रैकेट्स में UMT, रेज्यूमे फॉर द पोजीशन, आगे जिसका आप जिस तरह की जॉब के लिए अप्लाई, नॉट इन आवर कंपनी, इन जनरल जहां पे आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, तो वो आप सब्जेक्ट में लिख देना। और उसके बाद जी मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ भी शेयर कर देता हूँ, इस चैट के अंदर भी कर देता हूँ। और जितनी आपकी समझ हमें इस प्रेजेंटेशन से आई है, पहले आपने उसको खुद ठीक करना है और उसके बाद आपने मुझे भेज देना। और जितने सीरीज पॉसिबल हैं I'll try to answer them as much as possible. मैं ये अपना ईमेल एड्रेस चैट के ऊपर लिख रहा हूँ। मैंने कर दिया हुआ जी। तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ जी, प्लीज। फरा इफ यू कैन, आई थिंक बेटर ये है कि लोग जो हाथ रेज करते हैं वो आप बता दो, बारी बारी उनको ऑर्डर कर दो कि कौन कौन जो है वो क्वेश्चन कर ले, और जिसका आप नाम लो फिर वो क्वेश्चन कर ले, ताकि हम किसी ऑर्डर में चल लें। दैट्स इट। बना आप देख लो आपके पास क्या बेहतर सोल्यूशन है। Okay. Yes, Ali Wakar, you may ask your question now. अस्सलाम वालेकुम सर। जी अली बताइए। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ब्रेकआउट थ्रू टाइम 15 मिनट्स आपने दिया था, तो वो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे तो वो क्लोज हो गया वो। जी जी, मुझे बताया गया था होस्ट की तरफ से कि सब लोग ब्रेकआउट रूम्स में नहीं जा सके और बहुत से लोग मोबाइल से कनेक्टेड थे, तो वो रेज्यूमे शेयर और अपडेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उस एक्टिविटी को हमने फिर पोस्टपोन कर दी। अच्छा अच्छा, ओके सर, मेरा बस यही प्रॉब्लम थी, अदरवाइज ऑलराइट, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Burhan Hashmi, you may ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए प्लीज। Hello. जी बुरहान, आई कैन हियर यू। Hello, sir. Sir, am I audible? Hello. Yes, yes, Burhan. Sir, I have a question. When we have write down our educational academic history, सर उसमें जब हम अपनी डिग्रीज लिखते हैं या फिर हम उसमें लिख रहे हैं कि हमने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, देन वी एंटर्ड द बैचलर्स, और हम उस ओ लेवल्स और ए लेवल्स के पार्ट में अपना इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं, और हम थोड़ा सा ये भी लिख रहे हैं कि वी वर इनटू लाइक वी हैव परफॉर्म लाइक स्पीचिंग कंपटीशन, डिबेटिंग कंपटीशन देयर, एंड वी हैव बीन द हेड ऑफ द स्पोर्ट्स टीम एक्सेट्रा। ये एक दो लाइन हर एक डिग्री के नीचे हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो इज दिस गुड इनफ, और या फिर हम बस यही लिख दें कि वी हैव डन ए लेवल्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम देन टू देन टाइम? बस। जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो एजुकेशन के अंदर मत लिखिएगा, वो क्लटर हो जाएंगी। वो नीचे आप एक सेक्शन बना सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या एक्टिविटीज या अदर इंटरेस्ट्स, जो भी रेलेवेंट नाम से, और वहां पे मेंशन कर दो। अगर आप उसको एजुकेशन में ही डालोगे, अगर तो कोई मेजर अचीवमेंट है, आपने कोई गोल्ड मेडल एकेडमिक्स में लिया हुआ है, तो आप वहीं डाल दो। बेसिकली दैट सेक्शन इज फॉर एकेडमिक्स। उसके अंदर अगर आपने कोई गोल्ड मेडल या ऐसी कोई चीज, आपने डीन ऑनर लिस्ट कोई ऐसी चीज लिखी है, तो आप वहां पे डाल सकते हो। वैसे वो भी बेहतर है कि आप नीचे अलग सेक्शन में या मेजर अचीवमेंट के नाम से टैग करके लिख दो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हॉबीज, या जो भी रेलेवेंट चीज जो आपकी चीज से रेलेवेंट है उसमें लिख दो। अगर आप उस एकेडमिक वाले पार्ट को ज्यादा इन्फॉर्मेशन से भरोगे तो वो क्लटर हो जाएगी। उसके अंदर आपकी सिर्फ डिग्री, आपका इंस्टीट्यूट, आपकी मेजर्स और आपके CGPAs हो जाए, दैट्स इनफ। और ईयर्स और किस ड्यूरेशन में आपने वो किया था। सर ओके सर, सर ठीक है, बैचलर्स के लिए तो हम CGPA लिख रहे हैं सर। देन व्हाट इज फॉर द ये जो हमारा प्रीवियस जो एकेडमिक्स है, उसके लिए क्या हम उनकी परसेंटेज, मार्क्स या ये चीजें लिखें? कोई परसेंटेज होगी, कोई ग्रेड्स होंगे, ओ लेवल है तो ग्रेड्स होंगे, FSC है तो परसेंटेजेस होंगी। बिल्कुल, वो जरूरी नहीं कि सबका एक ही फॉर्मेट हो। ऑब्वियसली हम डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबका एक ही फॉर्मेट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडेबल, वो आप जो भी उसका रेलेवेंट ग्रेड है, नंबर है, वो लगा दो। हाँ, अगर आप FSC में लिख देते हो ग्रेड A, तो रिक्रूटर के लिए वो डिसीविंग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेड A तो मेरे ख्याल से मेरे जमाने में तो 580 के करीब से शुरू हो जाता था, बिकॉज मेरे जमाने में 850 मार्क्स होते थे। अब पता नहीं क्या चल रहा। तो ग्रेड्स मत लिखो, उस पर फिर मार्क्स लिख देना, ताकि एग्जैक्टली कुछ डिसीविंग मत लगे किसी रिक्रूटर को। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। Hanan Hamid, you may ask your question. Assalamu alaikum, sir. Am I audible enough? Yes, please go ahead. All right. I only have two questions, and I'll be precise with it. One, I would like to ask you that if a person is not currently working or and he just wants to restart his career again, like for example, I personally have an experience of 7 years myself, and I'm not working since 2018. Let's say I'm opting to go for an employment yet again, and what am I supposed to write in the objective? That's one. And second, how important is it actually to apply our own photograph? Should it be like a passport size photograph, or should we just put on a casual one? Or is it fine for recruiters to have the resume without any photograph? That's all. Okay, the first thing, if you have already 7 years of experience, don't go for the objective, write the summary. Why to tell anyone straight up? पहली चीज आप ये तो नहीं बताना चाहोगे ना कि यार मैं आजकल काम नहीं कर रहा। तो जो आपने जो भी पहले 7 साल काम किया है, और लेट्स अज्यूम कि आप आगे काम उसी में करना चाह रहे हो, उसी डायरेक्शन में करना चाह रहे हो, तो आप अपनी समरी लिख दोगे उसके अंदर कि मेरे पास 4 साल का, 7 साल का, 8 साल का इस चीज में एक्सपीरियंस है, मैंने और उस चीज में ये किया हुआ है। 4 लाइनों से ऊपर नहीं, बस 2 से 4 लाइनों के अंदर अंदर। अगर उसमें नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, हाइपोथेटिकल केस है कि पहले आपने काम किया हुआ था कस्टमर सपोर्ट में, और अब आप काम करना चाह रहे हो मार्केटिंग के अंदर। तो क्या वो जो आपने काम किया था वो मार्केटिंग से अगर कुछ रेलेवेंट बनता है तो उसको रेलेवेंट बना के लिख दो, विदाउट डिसीविंग एनीवन, विदाउट लाइंग ऑन द रेज्यूमे। अगर तो रेलेवेंट बनता है तो रेलेवेंट लगा के लिख दो, वरना फिर उसको ऑब्जेक्टिव से रिप्लेस कर दो।
और बता दो कि आप क्या करना चाह रहे हो। फिर उसको रिप्लेस कर दो ऑब्जेक्टिव से और बता दो कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपका सेकंड क्वेश्चन, I'm sorry मैं भूल गया, हनान आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? हनान आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? Yes sir, I was muted by the host. मैं ये पूछ रहा था सर कि किसी भी resume के अंदर how important is it to put on a photograph of the person who's applying for anywhere? Photograph. Like, yeah. Photograph is good to have. It's not mandatory. It's good to have. Secondly, high time हम passport size pictures से निकल आए, blue background, white Definitely. background से निकल आए, Yes. जिसमें हम ऐसे खड़े होते थे, बिल्कुल ना लगाना। ऐसी कोई तस्वीर वो बिल्कुल मत लगाना, लेकिन ऐसी भी ना लगाना कि जिसमें आप बाइक पे फिर रहे हैं या आप कैजुअली दूर से फुल शॉट्स नजर आ रहे हैं। आइडियली जो आप मुझे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो ना, एक नॉन वाइट ब्लू इन्वायरमेंट, मतलब एक आम दीवार, एक आम पीछे सोफा, और जितना फ्रेम मेरा इस वक्त नजर आ रहा है, दिस इज गुड इनफ। और इसमें थोड़ी सी, अगर मैं ऑब्वियसली हेडफोन नहीं लगाने उसमें, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ी सी स्माइल कर सकते हो तो बेहतरीन है, दैट्स इनफ। लेकिन कई दफा होता है कि हम थोड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं। एक तो ये है कि कई दफा हम तैयारी तब होते हैं जब हम किसी शादी पे जा रहे होते हैं, तो हम शादियों पे गए होते हैं और पीछे शादियों का मंजर होता है और हमने सूट पहना होता है, हम वो तस्वीर लगाते हैं। अगर तो वो मंजर नजर नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन पीछे गुब्बारे लगे हों और शादी का सामान लगा हो और हम, तो थोड़ा सा ऑड लगता है। और खास तौर पे अगर वो फुल शॉट हो, और अगर खास तौर पे हम किसी पार्क में गए हैं तो पूरा पार्क के साथ नजर आ रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। जितना इस वक्त मैं आपको स्क्रीन में नजर आ रहा हूँ, दिस फ्रेम इज गुड इनफ फॉर अ पिक्चर ऑन द रेज्यूमे। All right, that's And perfect enough. no passport size pictures जो पहले होती थी, blue background white. Yes, definitely. नहीं, That has नहीं, become too mainstream now. हाँ, Yes, नहीं। definitely. Definitely. Okay. One last, very small question. I won't take much time. Since I have a lot of education and certifications with me, do I need to add the certifications along with my education part, or should I add skills and certifications as a separate header? बेटर इफ सेपरेट। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो नॉर्मली, अच्छा ये चीज शायद मैंने मेंशन नहीं की, अगर आप फ्रेश ग्रेड हो तो आप स्टार्ट करते हो अपनी एजुकेशन से और फिर प्रोजेक्ट्स या एक्सपीरियंस या जो भी इंटर्नशिप्स आपने की होती हैं उस पर आते हैं। जब आप एक्सपीरियंस जाते हैं तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जो चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है आपने वहां से स्टार्ट करना होता है, जो आपके रेज्यूमे पे आप हाईलाइट करना चाहते हो। एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस से स्टार्ट करोगे, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी और एजुकेशन एंड में आएगी। पहले एजुकेशन का एक सेक्शन होगा जिसमें आपने अपनी एजुकेशन लिखी होगी, उसके बाद एक और सेक्शन होगा जहां पे अपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस लिख देंगे आप। All right, that's good enough, sir. Thank you so much. सब सेक्शन ऑफ एजुकेशन आपकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट्स होंगे, लेकिन एजुकेशन के साथ ही रखिएगा, वरना वो रिक्रूटर विल मिस देम। Definitely. Thank you so much, sir. वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Huma Zahra, you may ask your question, please. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था, लाइक इफ अ पर्सन इज कि उसके सीवी में गैप है काफी, लाइक मेरे जो लास्ट एजुकेशन है वो 2013 की है, उसके बाद से सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उसके बाद मेरी सीवी में काफी गैप है जो मैंने कोई काम नहीं किया। तो अभी जो मैंने दोबारा एडमिशन लिया है वो बेसिकली प्रोफेशनल रीजंस की वजह से लिया। तो सर मैं अपने उस गैप को किस तरह से फिल कर सकती हूँ? अगर तो आपने उस, वेरी फ्रेंकली, अगर तो आपने उस गैप में कुछ नहीं किया तो फिल मत करें, उसको गैप रहने दें और लेट द क्वेश्चन बी आस्क्ड, बिकॉज अभी आपने उसके ऊपर कुछ कर लिया ना, अभी आप उस पे 2017 से 21 का कुछ डाल रही होंगी, तो वो जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो गैप आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर देगा, रिक्रूटर की नजर में या किसी भी सॉफ्टवेयर की नजर में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अगर आपने कुछ ऐसा सीवी बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने एजुकेशन भी पहले की है और एक्सपीरियंस भी पहले का है और उसके बाद कुछ नहीं है, तो दो काम अक्सर लोग कर जाते हैं, या तो अपने एक्सपीरियंस को 2017 टिल प्रेजेंट कर देते हैं और वो प्रेजेंट 3 साल पहले खत्म हो चुका होता है, वो मत कीजिएगा, दिस इज डिसीविंग। उसका हल मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा ये कि अगर आपने दूसरा ये कि अगर आपने आपकी एजुकेशन पे, तो अगर आपने डिग्री 2013 में की थी और आप 17 to 21 कर रहे हो और 4 साल का उसके अंदर गैप है, वो बिल्कुल आपको वो दैट्स मीनिंगलेस, उसका कोई मसला नहीं है। उसको आप इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा जब आप जाएंगे, या स्क्रीनिंग कॉल जब आपको होगी, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
अच्छा, और जो मैं पहले बता रहा था कि वो प्रेजेंट तक ना कर दें। अगर आपने कोई नौकरी 3 साल पहले छोड़ दी और अभी तक वो प्रेजेंट चल रहा है, दिस इज डिसीविंग। आप कल को नहीं कह सकते किसी को, जी मैंने तो जी अपडेट नहीं किया था अपना रेज्यूमे, आपने भेज दिया था बगैर अपडेट किए हुए, तो उससे बड़ा मसला। तो उसका हल ये है कि आप उसको एक्चुअल ईयर्स पे रखो और फिर अपनी समरी ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन कर दो कि फॉर सम रीजंस which can be explained which can be explained, मैंने अपने ये एक्सपीरियंस मेरा वहां पे खत्म हो गया था, मैं बाहर चला गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जो भी थी, उसको कंसाइज वर्ड्स में बहुत एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा डिटेल में जाए बगैर आप अपने समरी वाले पार्ट में डाल दो डिस्क्लेमर के तौर पे। उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका कि द पर्सन वाज अपफ्रंट एंड नॉट डिसीविंग। दिस काउंट्स, दिस हेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Next, Salamat Riman can ask their question. जी सलामत। Salamat, can you hear us? सलामत ने चैट पे लिखा है कि वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलामत, कैसी हैं आप? I'm fine, sir. Hope you are doing good. I have Thank a question that do we have to put out each qualification on resume or just the recent one? Because we have received a good and bad CV format, in which good CV format had last education mention on it. I'm not sure कि जो भी वो आपसे शेयर किया गया था उसका कोई पर्सपेक्टिव होगा उन साहब का या साहिबा का जो आपसे शेयर किया होगा, which we can discuss. लेकिन it depends कि कितनी पुरानी क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 14 years of experience now. अब मुझे अपने मैट्रिक FSC बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बैचलर्स और मास्टर्स बतानी चाहिए। मुझे अपनी बैचलर्स लाजमी बतानी चाहिए बिकॉज बैचलर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री, और अपनी मास्टर्स बतानी चाहिए। अगर मैं बिल्कुल अपने करियर के पहले 1-2 साल में हूँ और मेरी प्री इंजीनियरिंग या O levels A levels कुछ ऐसा है जो मेरे CV पे स्पाइस अप कर सकते हैं, तो मुझे जरूर बताना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जो अपने एक्सपीरियंस के पहले या उससे कम साल पे होंगे। आप लोगों के लिए आपकी जो प्री इंजीनियरिंग है, एटलीस्ट प्री इंजीनियरिंग तक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेल्स द जर्नी। हो सकता है आपने O levels में अच्छे नंबर लिए हों, हो सकता है आपने अपनी FSC में अच्छे नंबर लिए हों, आपके प्रोजेक्ट्स बड़े, आपने किसी कोई अच्छी चीज उसमें अचीवमेंट ली हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। बिकॉज अगर आपने बैचलर्स ही किया हुआ, आपने सिर्फ बैचलर्स ही बता दिया, विच विल वर्क, इट्स नॉट अ नो, लेकिन बैचलर से ऊपर आपको सारी क्वालिफिकेशंस अपनी जरूर बतानी चाहिए। बैचलर्स मस्ट है, बैचलर्स को स्किप नहीं करना चाहिए अपने रेज्यूमे के ऊपर से। ज्यादा ये मसला तब होगा अगर आपका 10-12 साल एक्सपीरियंस हो चुका है और उसके बाद आप बैचलर्स मिस कर रहे हो, तो दैट इज अ ट्रिगर कि यहाँ पे कुछ छुपाने वाली चीज थी फॉर अ पर्सन जो कि एक अच्छा आदमी अगर उस रेज्यूमे को देख रहा है। अगर कोई नालायक सही देख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपकी रेज्यूमे किसी अच्छी जगह पे जा रही है, तो वहां पे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद मुजम्मिल। हाय मुजम्मिल। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो आप ये कह रहे थे कि CGPA मोस्ट मैसेज या एक स्लाइड में मुझे नज़र आया था, और मैंने भी जो 15-20 इंटरव्यू थी हैं उनमें भी मुझे यही मालूम हुआ कि CGPA डजंट मैटर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी CGPA है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि यार CGPA डजंट मैटर। मुझे किसी ने ये नहीं पूछा और आज मैंने किसी को बताया भी है, दैन मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि यार मैंने इतनी अच्छी CGPA बताई है, दैन मैं कुछ कर नहीं पाया उसको। तो क्या ये बहुत ज़रूरी है कि हम CGPA मेंशन करें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मुझे पता है कि कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनके थ्रू या गवर्नमेंट पर्सन हमारा CVs को देखता है। और दैन मेरा एक और क्वेश्चन है कि मेरा गवर्नमेंट था बैचलर्स में और मैं मास्टर्स में आके मैंने जिस यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन नहीं हुई ड्यू टू कोरोना वायरस एंड ड्यू टू अदर इशू, वो 3-4 साल लेट हो चुकी है, और मैंने एक जगह कह दिया कि मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। दैन मुझसे रिक्रूटमेंट ने पूछा
कि कैसा होता है गोल्ड मेडल, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि 3-4 साल कॉन्वोकेशन ले रही थी। तो इसी बात से ना मैंने उस गोल्ड मेडल को अपनी सीरीज से निकाल दिया। क्या ये बात मैंने सही की या गलत की? इन दो चीज़ों के जवाब देने हैं। देखिए, अगर तो आप श्योर हैं कि आपको गोल्ड मेडल मिला है, अगर आपका ख्याल है तो मत लिखें। अगर आपको श्योर है कि आप क्वालिफाई कर गए हो उसके लिए, आपको आप अगर बिकॉज कई तरह के गोल्ड मेडल्स होते हैं। अगर एक गोल्ड मेडल ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी दे रही है जो आपके हाईएस्ट मार्क्स जो लेट्स से सीजीपीए उसको दे रही होती है, जो आपको पता है कि आपको मिल चुका है इस तरह, तो आप उस पर गोल्ड मेडल्स लिख दो और जब आपसे कोई पूछे तो बता दो कि जी मुझे रिसीव नहीं हुआ, कॉन्वोकेशन नहीं हुई, लेकिन आई हैव क्वालिफाइड फॉर दैट, तो उसको जरूर मेंशन करो। और हाँ, सीवी देखें, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा जीपीए बहुत शानदार नहीं था, और मेरा तो बस चले तो मैं कहूँ कि हाँ जी सीजीपीए मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है, सीजीपीए मैटर करता है। अगेन हर एक एचआर प्रोफेशनल की, इस तरह आप में से हुमा की और रूप की और हाशिर की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस तरह एचआर के अंदर भी ऐसा मुमकिन है, ऐसा प्रोफेशनल के अंदर भी मुमकिन है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चीज होती है वो ये कहती है कि एटलीस्ट पहली जॉब्स में तो मैटर कर रहा है, एटलीस्ट बताना तो जरूरी मैटर कर रहा है कि आप बताएं उसको, और आप बता दें। अगर उनके लिए मैटर नहीं करता तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको छुपाने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बहुत अच्छा सीजीपीए है या नहीं भी है तो आप बताएं जरूर। अगर रिक्रूटर के लिए मैटर नहीं करता तो ठीक है, लेकिन उससे तो अच्छा है कि उसके लिए मैटर करता था, आपने नहीं बताया, या आप जिस तरह कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर था वो आपका सीवी पिक कर रहा था, आगे उसको जीपीए नहीं मिला, उसने साइड पे कर दिया, या किसी ने शॉर्ट लिस्टिंग करते हुए साइड पे करी, तो उससे तो बेहतर है कि आप बता दो। सेफ साइड तो ये कि बताओ। इफ यू आस्क मी, मैटर करता है, इंटायरली मैटर नहीं करता, इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके सीजीपीएस बड़े मुनासिब होते हैं, बड़े दरमियान में करके वो स्टूडेंट्स होते हैं, कई दफा बड़े काम के लोग भी वो होते हैं, इसीलिए तो सीजीपीए मैटर करता है। कि अगर आपको पता चल जाता है कि एक आदमी, कि हमारी नौकरी ऐसी है, हमारी जॉब ऐसी है जिसके अंदर हमें एबीसी स्किल सेट का आदमी चाहिए, तो मुमकिन है कि वो एबीसी स्किल सेट का आदमी हमेशा टॉपर ना रहा हो, तो इसलिए वो मैटर कर गया ना। अब उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो सीजीपीए मैटर करता है। आप उसको, और एटलीस्ट लिखना तो जरूरी मैटर करता है। हाँ, अगर आपके एक्सपीरियंस को 15-20 साल हो गए हैं, 14-15 साल हो गए हैं, और अब आप सीजीपी मेंशन नहीं करते, तो अब आपको जो जॉब्स हैं वो सीजीपी की बेस पे नहीं मिलनी चाहिए भी, और नहीं मिल रही। जब आपका करियर है वो सीजीपीए पे नहीं चल रहा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि अब कोई रिक्रूटर आपसे 15 साल के बाद आपके सीजीपीए के बारे में बात कर रहा हो या उसके पे कोई डिसीजन कर रहा हो। लेकिन जिस करियर स्टेज पे आप हो, सीजीपी के अलावा भी क्या है हमारे पास इस करियर स्टेज पे, जितना भी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Saad bin Jamshed, you may ask your question, please. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर इंस्टेंस इफ अ कैंडिडेट सेंड्स हिज सीवी एंड यू एज अ रिक्रूटर रिसीव्स इट, और उस बच्चे का एजुकेशन में गैप है, फॉर इंस्टेंस उसने फर्स्ट ईयर में 1 साल रिपीट किया, सेकंड ईयर में ड्यू टू सम रीजन वो एग्जाम्स नहीं अटेम्प्ट कर पाया, एंड 4 years ऑफ गैप उसकी इंटरमीडिएट में है, बट आफ्टर द ग्रेजुएशन फॉर द कंपनसेशन ही इज डूइंग अ जॉब, और जॉब के साथ वो स्टडीज कर रहा है, एंड ही इज मेंटेनिंग अ ग्रेट जीपीए, CGPA 3.9. What would be your reaction as a recruiter to that CV? Would you reject it or consider it? I will consider it definitely, depending upon the relevancy. Excuse me, क्योंकि इस जॉब के लिए, लेकिन ये फैक्टर पे कोई एतराज नहीं है किसी भी रिक्रूटर को कि आपने बीच में 1 साल मिस कर दिया था किसी वजह से। बहुत सी रीजन हो सकती हैं, आपके एडमिशंस लेट हो गए, आप किसी जगह पे अप्लाई कर रहे थे, वहां पे आपका ख्याल था कि आप हो जाओगे, बाहर जाना चाह रहे थे, नहीं हो सके, घरेलू मसले, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो एजुकेशन में गैप आ जाना इज नॉट अ नो, वो गैप किसी वजह से, अगर वो वजह खतरनाक थी तो और बात है, लेकिन एजुकेशन में गैप आना इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब वो अल्लाह ना करे वो वजह ऐसी थी कि जो बहुत अच्छी नहीं थी, तो फिर तो मसले वाली बात हो सकती है। जी जी। Okay, Mohit, please जी, ask your नेक्स्ट क्वेश्चन। question. जी मोहित, आप अनम्यूट हो, अभी अभी अनम्यूट नहीं हो शायद। मोहित, आई कांट हियर यू।
Okay, Mohammad Tayyib, you may ask your question, please. Tayyib, we can't hear you. Okay. Abdul Basit, you may ask your question, please. Tayyib cannot unmute himself. Tayyib ने मैसेज किया चैट पे कुछ. Tayyib, you may unmute yourself, please. हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं हम? सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल लिख सकते हैं। रिलेवेंट है तो जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर वो प्रोजेक्ट्स कोई बहुत मजे की नहीं है, खास नहीं है तो स्किप कर दें बेशक, लेकिन अगर अच्छे हैं तो जरूर मेंशन करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। I think we are done with questions. Okay, so there is one. Farah, am I allowed to share my number as well with all of the guys? सर आप अपना ईमेल शेयर कर दें स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है जी, मैंने अपना ईमेल शेयर कर दिया हुआ है ऑलरेडी। मैं दोबारा भी यहाँ पे लिख देता हूँ अगर वो ऊपर चला गया तो। फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मोस्ट वेलकम, आई वुड लव दैट। Thank you so much everyone. Just one last line I would like to say to all the people who are present at the moment. जिस डे एंड एज में हम हैं इस वक्त, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है हमें कुछ अचीव करने के लिए। हम आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले जब गूगल भी ऐसा नहीं था और अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे नहीं थी, इफ यू डोंट फाइंड अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन बहुत काम पड़ा हुआ है, बहुत मजे का काम पड़ा हुआ है, हर तरह का काम पड़ा हुआ है, HR का पड़ा हुआ है, मार्केटिंग का पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया का काम पड़ा हुआ है ऑनलाइन, बेहतरीन वेबसाइट से पड़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान नंबर 2 या 3 पर है फ्रीलांसिंग में। सो इस एज में, इस डे में कोई एक्सक्यूज नहीं है और ये कहना नहीं बनता कभी भी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दिस इज जस्ट आई वांटेड टू वेरी फ्रैंकली शेयर विद यू गाइस, इवन इफ यूर एक्सपीरियंस्ड गाय, इफ यू नॉट एक्सपीरियंस्ड गाय। और द गुड थिंग इज कि इस वक्त पेरेंट्स का वो जो एक खास था ना कि हमारा बच्चा किसी सरकारी मुलाजमत में जाए जहाँ पे वो 30 साल के बाद रिटायर हो और एक मुस्तकिल, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया हुआ। सो पेरेंट्स हैव स्टार्टेड नाउ अंडरस्टैंडिंग कि जॉब्स ऐसी ऐसी कि हमें भी समझ में नहीं आती, तो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। Thank you so much guys, thank you everyone. You can ask me questions on the email. Lovely interacting with you guys, thank you so much. Farah, can I leave? Okay. Thank you. Thank you, Mr. Ali Gohar, for such an interactive session and for giving your time. Okay. I hope it was a great learning experience. I hope it was a great learning experience for all of us, and students gained a lot of fruitful insights from it. OCLP always strives hard to provide resources, support, and opportunities to help them transform themselves into marketable graduates, and we will keep bringing more such more activities in future as well. Thank you everyone. I have shared a feedback form in chat. Kindly fill that for us. And thank tomorrow you, thank you very much for your valuable time ji. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you so much. One last information I would like to give to the students that we'll have a LinkedIn profiling session tomorrow. Just keep updated on your emails. There are several more activities planned for the rest of the week. So thank you very much all. Thank you.